get confused. We will get some clarity on it now. As a business owner, these are two powers that you have, that you need to use. I call them two bulbs. One is emotion and the other is logic. One is emotion and the other is logic. Now tell me by default, which one is more powerful? Logic is more powerful. This is what you think. How many of us believe that emotion is more powerful? I think logic is more powerful, but emotion always overtake logic. Practically, Because they are powerful only then they are. But I want to believe that logic is more powerful. Let me tell you. We all want to believe that we are logical. This is what we would like to hear about us, that we are logical. Let me give you a bad news. Being human, you are emotional beings. You agree? And for that, we are emotional beings. Let me give you another bad news. You are not even existential beings. You are a psychological being. Yes, sir. आपको फर्क समझ में आ रहा है? Existential being और psychological being में क्या फर्क है? Existential being और psychological being क्या फर्क है? नहीं समझ आया ना? तो फिर मैं किस लिए? आप समझे? Today the sun was on time. Do you know that? No. It was. It is never late. Yes or no? Does it make you happy? No. Because this is related to existence. आपको पता है ना? If sun disappears, how long Earth will survive? 18 hours. If sun disappears, Earth can only survive for 18 hours. That's it. But now this thing has no concern to us because we are not existential beings. आपको पता है, if the Earth, it is spinning, we all know, right? But if it increases the rate of spinning or slows down, will there be life on the planet? Yes, no, maybe? No life. No life, not possible. The distance between sun and earth, if it changes, can the life survive? No. No. But these issues are not related to. You can't survive without oxygen for more than 2 minutes. 2 minutes if you do not smoke. If you smoke, 45 seconds. Okay? Why are you looking at each other? तो लेट आए थे तो स्मोकिंग करने गए तो और बड़ा बात काम करता That's also perspective. But that's okay. That's okay. But because I'm giving example, we are not existential beings. We live in our own world. Yes or no? अगर मेरी कार पे स्क्रैच पड़ जाए ना, तो मेरी दुनिया में भूचाल आता है. Yes or no? Not a high tide because of the moon condition has changed. But if there is a scratch on my car, man, my world gets so vulnerable. Why? Because we are psychological beings. Let me tell you a very interesting psychological experiment done. A boy or a person was given 100 rupees note in a training program. 100 rupees note. And now the condition is, you need to share this note with another person in whatever quantity you may decide. Okay? You may decide. But the condition is, I have to make an offer to the other person that you agree to this percentage. If he disapproves, both get nothing. I have 100 rupees. The task is to share it with some other person in some ratio. You can decide the ratio. But if he rejects my offer, both get nothing. So, this is what we will do. Safest bet 50-50. But now think about one thing. This 100 rupees note was not yours. Even if I have offered 80-20, 80 me, 20 you. Why should you reject it? You are getting 20. Why should you reject it? But the surprising result was, anyway
the offers were not 50-50, they were rejected. Do you know why? I am not interested in what I get. I am now more interested in that you should not get. Because you were unfair to me. Now this is what fairness as a value, comes in our mind. Now the same thing applies to family business. Whatever you are giving to the other person, you might think it is fair. But other people have their own ideas that whether it is fair or unfair. तो यहाँ इमोशन में और लॉजिक में झगड़ा है. ऑब्वियसली अच्छा होता भी है. तो हम सारे फिर वो नहीं हो जाते, साधु नहीं हो जाते. Okay. Now tell me one more thing before we proceed. Since our childhood, have we been taught teamwork, or we have been encouraged as an individual? I'm not in a hurry. Take your time. आपको क्या कहा था स्कूल में? फर्स्ट आई हो, सेकंड आई हो, या कहते थे अपने दोस्त को ज्यादा नंबर दिलवाइए? वो तो फर्स्ट आई हो मतलब क्या है? वो तो फर्स्ट आई हो मतलब क्या है? In sports, you were expected to come first, unless you were into some team sports. There you have no choice. Otherwise, we are being brought up under the individualism approach. आप बताना जरा, इंडिया का हाईएस्ट टारगेट क्या है? वो मैच लॉ में भी है. What is the highest goal? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. उसको क्या बोलते हैं? लिबरेशन. इंडिया में क्या बोलते हैं? मोक्ष. मोक्ष बताना जरा. फैमिली गोल है, इंडिविजुअल गोल है. मेरा मोक्ष. आप में से कोई वाराणसी गया? बनारस? ठीक है, अच्छा. बनारस जाते लोग मोक्ष के लिए. इतनी गंगा तो कहीं भी ना लोग. बनारस में कहते हैं अगर बनारस में कोई मर जाए तो वो सीधा डायरेक्ट एंट्री मिलती है उसको. वो दोबारा वापस नहीं आना होता. तो लोग फिर ना वो भेज देते हैं बूढ़ों को वहां पे कि डायरेक्ट हो जाएंगे. पर आप देखोगे वहां के जो घाट है ना, इतने फिल्दी घाट है भाई. घाट मतलब जाते हुए ना बंदा नहा कैसे करके जाता है. इतने फिल्दी घाट है. और मेरा पर्पस क्या है? इंडिविजुअल मोक्ष. तो मैं अपनी जगह बना के ना चुपचाप चला जाता हूँ और डुबकी मार के जय हो. मेरा तो काम हो गया. कोई उन घाट के बारे में नहीं सोचता. Have you heard this quote before? Nobody has ever washed a rented car. Nobody has ever washed a rented car. तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो ज्यादातर क्या है? इंडिविजुअलिज्म. एंड नाउ सडनली हमारे यहाँ तो स्टार्स को इज्जत मिलती है ना. हमारे यहाँ कभी आपने अपने वो जो वो मूवी से पहले नाम आता कैमरामैन, ये मैन कभी देखा? बस शाहरुख खान, चल लो जी. हाँ, तो वो तो अनलेस यू आर टेक्निकल पर्सन, अदरवाइज यू डोंट लुक एट. हाँ, सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी सोसाइटी रही है कैसी थी? इंडिविजुअलिस्टिक. एंड सडनली नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू बिजनेस व्हिच इज नॉट अ सोलो गेम. बिजनेस इज व्हाट? टीम गेम. My success depends on his success. His success depends on my success. And now let me tell you, as an entrepreneur, your success depends on your people's success. So this individualistic approach helped you in school and college to reach to a stage. But now the same habits will start backfiring. That's what I wish to tell you. In school, college, they helped. Your aggression. You're assertive, हमेशा अपने को assertive ही कहते जाए, aggressive हो. Being aggressive has helped. School, college, very good. But now you've got the business and same style of communication. My way or highway. कह दिया तो कह दिया. Then they start backfiring. So there's a constant fight between our emotional self and our logical self. And the whole idea is taking charge of these two. Please understand, by default, we are wired emotionally. We need to learn. We need to learn to manage our emotions, to be a successful entrepreneur. And how do I manage this? I have seen in a lot of successful companies,
the suggestion of a trusted worker or a manager is given more weightage than the managing director who is the son of the chairman. And the managing director is willingly agreeing to this. He said, okay, I agree. My suggestion was not as effective as this suggestion is. But obviously he needs to handle a lot of emotions here. No, sir? So can you do that? Ask yourself these questions. Because if you can't, then you don't have the basic value which is required to be a successful employee. अपनी भावनाएं थोड़ी सी जरा नियंत्रण करना पड़ा। आप नेशनल थ्योरी में कौन से पैडल पे हो? हाँ, सब सर्वदृष्टि, क्योंकि मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, सेफ्टी नीड्स आर मेट, सोशल नीड्स आर मेट, सीधा इज्जत, सीधा इज्जत। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट। आपने देखा था, एक मैंने बताया था कि फैमिली बिजनेस, फैमिली में जो उनके थ्रेट्स हैं, उसमें एक थ्रेट है एरोगेंस। वुड यू एग्री? एरोगेंस, एरोगेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट इज एरोगेंस इन हिंदी? अक्कड़, घमंडी, अहंकार। इस कमरे में जितने बैठे हैं, कितने लोगों में है? बाकी पता नहीं है। बाकी पता नहीं है। देखो बड़ी हिम्मत चाहिए बॉस हम ये कहने को कि हाँ जी मेरे में अक्कड़ है। लेकिन मैं बताऊं साहब, इस कमरे में ऐसा कोई नहीं है जिसमें अक्कड़ नहीं है, क्योंकि ये कहना मेरे में अक्कड़ नहीं है, कितनी अक्कड़ की बात है। क्यों साहब? मतलब कितने एरोगेंट होकर कह रहे हो कि मैं अव्वल हूं। क्यों साहब? अगर इंसान है तो थोड़ा मुश्किल है। अब ये देखिए जो कर रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सिम्टम बताता हूँ इसको। हर एक को ये लगता है, चल मान लिया, हाँ एक बात भी आता है, ठीक। अब सुनो, अच्छा और एक बात और सुनो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या मेरे में नहीं है? वरना मैं मान लेता आपकी बात खत्म ही जाती है। तो मेरे में सबसे ज्यादा है। आपको जानकारी के लिए बताऊं, जितने टीचर और ट्रेनर होते हैं ये बड़े एरोगेंट होते हैं, इसीलिए इस प्रोफेशन होते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में एक बड़ी मिलती है, किसी को समझाया है, पढ़ाया है, जीवन को मार दिया है, और रोज शाम को ना खुद ही धमकी देता जाता है कि ओ शाबाश शाबाश, बहुत बड़ा काम किए। अगर अंडरस्टैंड इस कॉन्सेप्ट को मैंने ना बनाया है। Arrogance is like a black dark horse. इस हॉर्स में दिक्कत पता क्या है? It's very powerful. It gives you a lot of power. जब अंदर एक थोड़ी सी होती है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार है। So this black horse is very powerful horse. पर इसमें एक ही चैलेंज है, इसका कंट्रोल नहीं है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन पावर बहुत है इसमें। इस घोड़े का नाम मैंने रखा मोती। क्या नाम है इसका? मोती। अब दिक्कत पता क्या है? क्योंकि इसमें पावर बहुत है लेकिन कंट्रोल है नहीं, और हम इसकी सवारी करते हैं, बैठ तो गए पर कंट्रोल है नहीं। तो ये ना हमें जगह जगह ले जा के पिटवाता है। कैसे पिटवाता है बताता हूं। आप अपनी जा रहे हो जी BMW से, और एक टोयोटा कोरोला वाला आपको कट मार के निकल गया। फायदा क्या हुआ 68 लाख गाड़ी के खर्च करने का, अगर 12 लाख वाली निकल गई। अब लेते रेस हो रही है, अपना डेस्टिनेशन 2 किलोमीटर पीछे रह गया, ऐसे थोड़ी 68 लाख। अच्छा अब आप उससे आगे निकलोगे तो कुछ सिग्नेचर वगैरह कराना है उसे? कुछ नहीं। अच्छा उसको शायद पता भी नहीं है वो हमारा मोती छेड़ क्या है। कोई इमरजेंसी हो सकती है, जैसा ना कोई और कुछ भी हो सकता है, आपको क्या पता उसके बारे में। But now because you are treating it as a prestige issue, why? Because of मोती। अच्छा और ये ऐसा ना सोचो कि ये सिर्फ बिजनेसमैन और ये जिनके पास पैसे हैं वही करते हैं। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। अभी जहाँ की आप बात कर रहे हैं, इंदौर जाना चाहते हैं सर, तो अभी जब मैं वहां गया तो साया जी जो होटल है वो गाड़ियां जो लेने भेजते हैं ना जो गेस्ट को,
लोग, या तो मर्सिडीज भेजते हैं या ऑडी भेजते हैं। तो हम उतरे जी एयरपोर्ट पे, ऑडी लेने आई हुई थी। अच्छा, और वो भी कौन सी थी? Q6। तो हम उतरे, ऑडी में बैठे, तो हमने ना आगे वाली सीट पे बैठना उचित समझा। मैंने कहा आगे से थोड़ा देर इसके पीछे पीछे देखे। तो शुरू हुई, अब शॉपर साहब चला रहे हैं, तो ना वो थोड़े स्टूडेंट्स, एक लड़का पीछे एक और लड़का बैठा हुआ, और उनको शायद ऑडी देख के कोई मजा आया होगा, और वो जिप। अब ये जो हमारा शॉपर है, समझते क्या है? मैं कहा गुरु, तो भी मोती में बैठा है। अच्छा, मोटरसाइकिल से 125 सीसी, तो 2800 सीसी है, 3000 सीसी लेके बैठा है, फिर भी तेरे को अंदर से भी दिक्कत हो रही है। तो मोती उसका भी है, क्योंकि वो इस वक्त ऑडी चला रहा है। मेरी बात समझ, तो और मतलब मोती के लिए कोई ज्यादा सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। आपको पता, हमारे इंडिया में कईयों के पास इस बात का भी मोती है कि उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या हो गया? कभी कुछ मांगा नहीं किसी से। अच्छा, कईयों को ईमानदारी का मोती होता है, आज तक किसी की चौथी नहीं खाई, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई इसी बात का दुख है। ठीक है, कोई चौथी नहीं खाई तो जेल भी नहीं हुई कभी। पर ये इस बात का क्या मतलब, तो मोतियों के बड़े झगड़े हैं। और आप देखोगे फादर और सन में भी क्या हो जाता है कई बार, मोती। अच्छा, आप में और किसी सीनियर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या हो जाता है? मोती। अच्छा, क्योंकि सीनियर मेंबर्स भी बड़े मोती, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये कई बार मानते नहीं है कि यार